محرم الحرام کے معنی آمد ہے۔ یہ محرم یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے حرمت بخشی گئی ہو، یعنی تقدس والی معنی، اللہ کے نزدیک عظمت والی معنی۔ اس معنی کی بڑے قدر کی جاتی تھی اور اس معنی کو بڑے فضیلت بخشی ہے اللہ رب العزت نے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك دین القیم صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستو بزرگ، محرم الحرام کے معنی آمد ہے۔ محرم الحرام یہ محرم یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے حرمت بخشی گئی ہو، یعنی تقدس والی معنی، اللہ کے نزدیک عظمت والی معنی۔ بے شک معنوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہے، ان میں سے 4 مہینہ یعنی محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج، 3 مہینہ ساتھ ہے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور ایک رجب کی مہینہ ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک آسمان و زمین جس دن بنائے اسی دن سے اللہ کے نزدیک یہ 4 ماہ حرمت والے دن ہیں۔ ایسے نہیں میرے دوستوں کہ یہ عظمت اور حرمت والی معنی کس وجہ سے ہے؟ اللہ نے تو فرما دی، اللہ کی کتاب میں ہے کہ حرمت والی معنی اللہ کے نزدیک 4 حرمت والی معنی، جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا اسی دن سے یہ اللہ کے نزدیک 4 ماہ حرمت والی معنی ہے۔ ان مہینوں میں نہ جنگ جدال کرنا ہے، نہ لڑنا، نہ جھگڑنا، ان دنوں میں اللہ نے اس کو حرام قرار دی ہے۔ یہ حرمت والی معنی ہے، اللہ کے نزدیک یہ تقدس معنی ہے۔ تو لہٰذا ان مہینوں کے اندر ہر قسم کی جنگ و جدال، ہر قسم کی جنگ سے پرہیز کی جائے، اور یہ حرمت اللہ نے اس معنی کو حرمت بخشی گئی ہے، اور خصوصی طور پر اللہ نے اس معنی کو حرمت بخشی ہے۔ اب میرے دوستوں، بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ معنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی 10 عاشوراء، 10 محرم الحرام کی وجہ سے نہیں، یہ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرمت والی معنی فرمایا، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ یا عاشوراء والے دن اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے میرے دوستوں یہ حرمت والی معنی جانے جاتی ہیں، بلکہ ایام جاہلیت میں بھی اس معنی کی بڑے قدر کی جاتی تھی، اور اس معنی کو بڑے فضیلت بخشی ہے اللہ رب العزت نے۔ اور اس مہینہ کو اگر کوئی جنگ و جدال کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ مہینہ آ جاتے تھے تو وہ ان مہینوں میں جو ہے جنگ و جدال بند کرتے، اور اگر بند نہیں کر سکتے تھے تو وہ ہیلا اور تعویل کر کے کچھ لوگ
अय्याम जाहिलियत वाले दौर के लोग तो इसको मुहर्रम को आगे करके सफर को आगे लेकर आ जाते थे, जिसके मुतालिक अल्लाह ने फरमाया इन्नमन नसीयु ज़ियादतुन फिल कुफ्री युदिल्लु बिहिल लज़ीना कफरू युहिल्लूनहु आमन व युहर्रिमूनहु आमन, कि भाई इस दिन को पीछे मत करो, ये पीछे मत करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो महीना कि ये दुनिया आसमान और जमीन बनाने से पहले, इस दुनिया को बनाने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को बनाने से पहले रब्बुल इज्जत ने इन 4 महीनों को हुर्मत वाली महीना यानी अजमत और फजीलत वाली महीना फरमाया। तो इस मुहर्रमुल हराम की जो फजीलत है बहुत बड़ी फजीलत वाली महीना है। इस महीना के अंदर करने के काम क्या है? यौम आशूरा की रोजा रखना और 9, 10 या 10, 11 को, क्योंकि रसूल मुकम्मल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सहाबा ने पूछे या रसूल अल्लाह ये महीना की यौम आशूरा के दिन ना यहूदी भी रोजा रखते थे कि उनकी दरमियान भी बड़ी आजमत वाली दिन थे, फजीलत वाली दिन था, फजीलत वाली महीना है, तो इस दिन को रोजा कैसे रख के अल्लाह के रसूल ने फरमाया इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने अगर हमें आइंदा साल जिंदगी अता फरमाया तो इंशाअल्लाह हम 10 को भी रोजा रखेंगे, यानी 9, 10 को या 10, 11 को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि उनकी भी एक दीन है, उनकी भी एक दीन है। हमारे ये जो दीन है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी ये सीधी दीन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये उम्मत मोहम्मदी के लिए 2 रोजा रखी जाए ताकि यहूदियों के साथ इनकी मुशाबा ना हो। तो लिहाजा मुसलमान जब रोजा रखे ना तो फिर 2 रोजा रखे, यानी 9, 10 को या 10 या 11 को, ये 2 रोजा रखे। इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यौम आशूरा के दिन ना रोजा रखने को भी बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत फरमाया। फिर फरमाया घर वालों पर खर्च में वसात रखना, यह भी बहुत बड़ी फजीलत है कि नफली इबादत कसरत से करना, ये भी करने की काम है, बहुत बड़ी फजीलत है। गुनाहों से बचने की कोशिश करना, हमेशा तौबा इस्तिगफार करना और इत्तिबाए सुन्नत का आज़म करना और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलना, हर किस्म की बिदात से अपने आप को बचाना, हर किस्म की शिरकियत से, कुफरियत से बचाना। बल्कि जब इतनी बड़ी फजीलत वाली महीना है मुहर्रम की महीना कि इस महीना जब एक मुहर्रम आ जाए उसी दिन से आप नियत कर लो कि भाई हम किसी किस्म की कोई गुनाह नहीं करेंगे और हर किस्म के गुनाहों से तौबा करते रहेंगे और हर रोज इंशाअल्लाह ताला मैं नेक काम करूंगा और फिर दीन की तबलीग करते रहूंगा, लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहूंगा और रोजाना कुरान मजीद की तलावत करूंगा और रोजाना नफिल इबादत करूंगा, जमात कभी नहीं छोड़ूंगा। हमेशा नेक अमाल की जो है ना ख्वाहिश होना चाहिए, हमेशा नेक अमाल की ख्यालात और मेरे दोस्तों हमेशा नेक जो है ना अमाल की अज़म रखना चाहिए। यही मुहर्रमुल हराम की महीना है क्योंकि ये फजीलत वाली महीना है, इसमें अल्लाह ने बहुत बड़ी फजीलत बख्शी है। लेकिन यह अपने तौर पर जो है कि मुहर्रम और सफर को आगे लेकर आ जाना फिर मुहर्रम को पीछे लेके जाना, इसके बारे में अल्लाह ने मना फरमाया कि यह भी एक गुमराहियत है, ये कुफर तुम्हें बहकाते हैं, इनकी बकाव पे नहीं आओ, क्योंकि अल्लाह ने जिन महीनों को हुर्मत वाली महीना बनाया ना तो तुमने उस महीना को हलाल मत करो और जिन महीनों को अल्लाह ने हलाल बनाया उसको हराम तुम मत करो, ऐसे ना हो कि कुफर जो है ना काफिर ये जो है ना तुम्हें बहका दे। फिर मेरे दोस्तों इस महीना के अंदर नहुसत जो ना करने वाली चीज है कि नहुसत और गम का महीना समझना, इस महीना को काला लिबास पहनना, फिर मेरे दोस्तों सोग और तजिया और उसके बाद मातम नोहाखानी करना, इस किस्म की काला लिबास पहनना, फिर काला झंडे अपने घरों में लटकाना, फिर शरबतों के सबीले बनाना, ये सारी चीजें खाने पकाने के एहतमाम करना, हलीमे पकाना, ये सारे सिलसिला ये जो कि शरीयत में ये सारे बात ही नहीं है। लोग अपने अपना मर्जी से रसूमात बना दी है, अपने अपने मर्जी में जो है ना ये बिदात शुरू की है और इसको दिन के अंदर शामिल करने की कोशिश की है। तो लिहाजा ये मनगढ़ंत चीजें हैं, इसमें जो है लोगों को ये फरेज करना चाहिए, लोग इस किस्म की चीजें किस्म के रसूमों से दूर रहे तो बेहतर है। अब मेरे दोस्तों ये अरबी महीना जो है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने किताब के अंदर जिक्र फरमाया, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमदुल उला, जमदुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वल, जिलकद, जिलहज, ये मुहर्रम। इसमें से 4 महीना हुर्मत वाली कौन सी है भाई? मुहर्रम है, रजब है और जिलकद है, जिलहज है। 3 महीना लगातार है, जिलकद, जिलहज, फिर मुहर्रम, उसके बाद रजब की महीना है।